Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very interesting chapter, thermal properties of the matter. We are discussing. And friends, so far we had discussed about the uh, heat and temperature. We also learnt about the thermometers. We had discussed about the liquid thermometer. We had discussed about the gas thermometer by using the equation of state equation of ideal gas. After that, we had learnt about the thermal expansion. We had learnt about the linear expansion, surface expansion, and volume expansion. We had learnt that the coefficient of surface expansion is twice than that of the linear expansion, and the coefficient of the volume expansion is three times than that of the linear expansion. That also we had proved in the last lecture. After that, we also had learnt about the volume coefficient of the volume expansion of ideal gas. Gamma is equals to 1 upon absolute temperature, 1 upon T. We had proved that thing. We also discussed about the anomalous expansion of the water, and that helps to survive the aquatic animals in the winter that we had learned. Am I right, friends? Yes or no? हाँ कि ना तो बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Then after we discussed Yes, sir. some new physical quantities. उसके बाद में कुछ नए क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया था. हमने स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है वो हमने डिस्कस किया था. हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. आफ्टर दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इन शॉर्ट इट वाज आल्सो नोन एज ओनली स्पेसिफिक हीट. तो स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, वो हमने डिस्कस किया था. उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि भाई लिक्विड एंड सॉलिड सब्सटेंस के लिए वो मास बराबर है, बट गैस सब्सटेंस का जो मेजरमेंट होता है दैट इज ऑन द बेस्ड ऑफ मोल अमाउंट. सो मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कस किया था, एंड उसके भी दो टाइप थे. मोलर स्पेसिफिक हीट एज अ कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम भी हमने डिस्कस किया था. तो यहाँ तक हमने ये चैप्टर में डिस्कस किया है. ये चैप्टर के जो थ्योरी से है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीटेशन पे है. आज ये चैप्टर के थ्योरी कंसेप्ट को हम खत्म कर देंगे, and you will getting the notes of numerical in day or two, and then after we also going to discuss the numerical in next lecture. तो friends, क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट में हमने लिखा था, उसमें कैलोरीमेट्री एंड कैलोरीमीटर का खाली डेफिनेशन आपको प्रिपेयर करना था. अब क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23 कैंसल्ड है. वैसे 24 भी कैंसिल है, बट वो हमको समझना पड़ेगा, उसको हमको डिस्कस करना ही पड़ेगा. तो 24th क्वेश्चन जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे भले ही वो कैंसल्ड है, बिकॉज आगे के कंसेप्ट को समझने के लिए वो जरूरी है. तो क्वेश्चन नंबर 18 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक आपको करने की अभी जरूरत नहीं है, उसको हम अभी निगलेक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. 18 से लेके 23 तक. 24th क्वेश्चन पे आ जाओ. What is latent heat? Explain with example. So friends, हमने लोगों ने ये देख लिया था कि कोई भी सब्सटेंस को अगर आप हीट प्रोवाइड करते हो, कोई भी सब्सटेंस को आप हीट प्रोवाइड करते हो, तो along with the thermal expansion, apart from the thermal expansion, one of the two thing is possible. अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करते हो तो थर्मल एक्सपांशन तो होता ही होता है, बट उसके अलावा दो में से कोई एक चीज होगी. या तो उसका स्टेट चेंज होगा या तो टेम्परेचर चेंज होगा. वेरी गुड. या तो उसका स्टेट चेंज होगा या तो टेम्परेचर चेंज होगा. अब फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट,
from definition of a specific heat, we come to know that the specific heat, capital C, is nothing but, it is denoted by small s as well. That is the amount of heat required to increase the temperature of a unit mass by 1 Kelvin or 1 Celsius. This is defined as a specific heat. तो उसके ऊपर से हमको ये पता चल गया कि अगर कोई बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा टी जितना इंक्रीज करना है, बॉडी का मास m है और उसका स्पेसिफिक हीट c है, तो रिक्वायर्ड हीट एनर्जी mc डेल्टा टी है। ये हमको समझ में आ गया कि अगर कोई m मास के बॉडी का टेम्परेचर अगर डेल्टा टी जितना रेज करना है और उसका स्पेसिफिक हीट c है, तो दिस मच हीट इज रिक्वायर्ड। तो टेम्परेचर के चेंज के साथ रिक्वायर्ड हीट कितना है वो हमको पता चल गया। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो हीट प्रोवाइड करते हैं वो बॉडी के स्टेट चेंज में यूटिलाइज हो जाता है। जैसे सॉलिड मटेरियल है, मान लो कि ये आइस है, तो आइस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ अ वाटर, राइट? आइस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ अ वाटर, एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। तो सॉलिड के अंदर आपको पता होगा कि इंटर एटॉमिक जो बॉन्डिंग होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो इंटर एटॉमिक या इंटर मोलिकुलर बॉन्डिंग जो है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो मान लो कि ये हमारा आइस जो है ना वो 0 सेल्सियस पे है, और अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो फ्रेंड्स ये जो हीट होगी ना वो कहाँ पे जाएगी पता है आपको? चेंज ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट नहीं, चेंज ये करने जो में हीट है जाएगी। ना वो ये बॉन्डिंग जो है ना उसको ब्रेक करेगी, ये बॉन्डिंग को थोड़ा वीक करेगी। तो जैसे जैसे आइस के मोलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो थोड़ा वीक होता जाएगा, तो ऐसे आइस का किस में कन्वर्जेशन होता जाएगा? वाटर में। वाटर में। वाटर में। तो यहाँ पे हमारा जो हीट प्रोवाइड किया हुआ है वो किस में यूटिलाइज हो रहा है? वो टेम्परेचर को रेज करने में नहीं हो रहा है, वो उसके इंटर एटॉमिक फोर्सेस को मिनिमाइज करने के लिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स को डिक्रीज करने के लिए यूटिलाइज हो रहा है, मतलब स्टेट चेंज करने के लिए यूटिलाइज हो रहा है। तो उसके रिस्पेक्ट में एक नया क्वांटिटी पिक्चर में आता है, एंड द नेम ऑफ दैट क्वांटिटी इज अ लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का डेफिनेशन ये है कि अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी from solid to liquid or liquid to gas. Amount of heat required to change the state of a body of a unit mass is defined as a latent heat. Amount the heat required to change the state of the body of unit mass, to change the state of the body मतलब either from solid to liquid or from liquid to gas. तो ये स्टेट चेंज करने के लिए पर यूनिट मास जो हीट रिक्वायर्ड है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। दैट इज द डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ द लेटेंट हीट? लेटेंट हीट का जूल पर केजी। वेरी गुड, इट शुड बी अ जूल पर केजी, इट शुड बी अ कैलोरी पर ग्राम एज वेल, इट मे बी दिस एज वेल, ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर कहीं पे स्टेट चेंज हो रहा है तो आपको हीट का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा क्यू इक्वल्स टू ml। तो फ्रेंड्स देखो, अब आपको ये चीज याद रखना है कि कोई भी लिक्विड या सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कोई भी लिक्विड या सॉलिड ऑब्जेक्ट है, और अगर आपको हीट फाइंड करना है तो आपके पास दो फॉर्मूला है, आइदर यू कैन अप्लाई mc डेल्टा टी और यू कैन अप्लाई ml। बट आपको देखना है कि हो क्या रहा है, क्या टेम्परेचर रेज हो रहा है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा अगर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आ रहा है तो? फर्स्ट वाला डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एमसी डेल्टा टी। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला आएगा mc डेल्टा टी, वेयर c इज अ स्पेसिफिक हीट, इट विल बी गिवन टू यू, इट विल बी गिवन टू यू। एंड अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो आपको अप्लाई करना है ml वेयर l इज द लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट के भी दो टाइप हो सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। तो जब कोई बॉडी का सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्जेशन हो रहा है तो एट दैट टाइम जो लेटेंट हीट होगा उसको क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। भाई सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना उसको फ्यूजन सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो उसको वेपराइजेशन बोलते हैं, नहीं उसको फ्यूजन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, तो अब लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन को डेफिनेशन उसको बनाना है तो क्या करेंगे?
लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन को डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू change the state of a solid body into the liquid of unit mass. Amount of the heat required to change the solid state to the liquid state of 1 gram mass or unit mass is defined as a latent heat of a fusion. मैं वाटर के लिए बात करूं तो वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन है ना वो 333 किलो जूल पर केजी है। मतलब अगर 1 केजी वाटर को, अगर आपको 1 केजी वाटर को, सॉरी 1 केजी आइस को, 1 केजी आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो आपको कितना हीट देना पड़ेगा, 333 किलो जूल देना पड़ेगा। उसको अगर कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 80 कैलोरी पर ग्राम। किलोग्राम को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, किलो जूल को मैंने कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब दूसरा मीनिंग ऐसा भी है कि 1 ग्राम आइस आपके पास है, 1 ग्राम आइस, अगर उसको आपको वाटर में कन्वर्ट करना है 1 ग्राम आइस को, तो रिक्वायर्ड हीट जो है ना वो 80 कैलोरी है। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन क्या होगा? तो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड state into gas to the vapor state of the object, gaseous state of the object of a unit mass. Heat required to change the state of a unit mass from its liquid state to the gas state is called the latent heat of the vaporization. Is that clear, friends? Yes, sir. Yes, sir. वो जो है ना वो वाटर को अगर 2256 किलो जूल पर केजी, मतलब 1 किलोग्राम वाटर को अगर वेपर में कन्वर्ट करना है, वेपर में, तो कितना एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है? 2256 किलो जूल। तो सोचो फ्रेंड्स, आइस को मेल्ट करना इजी रहेगा या वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना इजी रहेगा? क्या इजी रहेगा? आइस को मेल्ट करना। आइस को मेल्ट करना। आइस को मेल्ट करने के लिए कम हीट रिक्वायर्ड है, वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा हीट रिक्वायर्ड है। एंड इसको अगर हम कैलोरी में कन्वर्ट करें तो इट इज अ 540 कैलोरी पर ग्राम। तो 1 ग्राम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है तो 540 कैलोरी हीट आपको देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो फ्यूजन प्रोसेस होती है एंड वेपराइजेशन जो प्रोसेस होती है ना, वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, उसके कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही होता है। तो जिस टेम्परेचर पे अगर आइस का फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है तो उसको फ्यूजिंग पॉइंट बोलते हैं और मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। फ्यूजिंग और मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो हमको पता है कि वाटर के लिए वो मेल्टिंग पॉइंट कौन सा है इसके लिए? 0 सेल्सियस। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। और वेपर में कन्वर्ट होना मतलब बॉयल होना, तो वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होते हैं। वाटर का हमको पता है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो ये वाटर का हमको पता है तो डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट का ये सब अलग अलग होता है। तो क्या फ्रेंड्स ये लेटेंट हीट आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन आपको समझ में आया? यस सर। लेटेंट हीट जो होती है Yes. वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए वो अलग अलग होती है। हमने जस्ट अभी जो वैल्यूज हमने डिस्कस किया वो वाटर के अलग अलग स्टेट के लिए ही वैलिड है, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए वो अलग अलग होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो लेटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन वो क्या है हमने डिस्कस कर लिया। फिर एक डायग्राम है, ये डायग्राम हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, याद है फ्रेंड्स आपको? यस सर। तो अभी ये डायग्राम को थोड़ा वैल्यू Yes, sir. देखो, अभी ये डायग्राम जो है ना वो पहले हमने जस्ट एफएजेडली डिस्कस किया था, अब थोड़े वैल्यू के साथ डिस्कस करते हैं। चलो ये डायग्राम को थोड़े वैल्यू के साथ डिस्कस करते हैं। Am I audible to you friends? यस सर। तो मेरा कैमरा किधर चला गया? Okay.
कोई नहीं, चलो। आर यू एबल टू सी दिस डायग्राम इन योर मोबाइल स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. ओके। आर यू एबल टू सी माय फेस? Yes. Yes. sir. ओके, कोई नहीं, चलो। देखो, मान लो कि मेरे पास 1 किलोग्राम आइस है। कितना है? 1 kilogram ice. 1 किलोग्राम आइस मेरे पास है, और उसका इनिशियल जो टेम्परेचर है वो -10 सेल्सियस है। उसका इनिशियल टेम्परेचर -10 सेल्सियस है। कितना है भैया? -10 Celsius. ओके। अब मैंने है ना वो आइस को एक बीकर में रख के नीचे से सोर्स अप्लाई तो किया ही है, बर्नर से उसको हीट तो मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। Sir, screen Sir, में कुछ लिख रहे हो sir? हाँ सर, कहीं देखा तो नहीं। क्या हो रहा है? अभी दिखाई दे रहा है? नहीं सर, वीडियो No, में sir. आपकी आवाज आ रही। ओके। सो क्या दिखाई दे रहा है अभी आपको? कुछ नहीं. कुछ नहीं सर। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं सर। No, sir. आइस का इनिशियल टेम्परेचर -10 सेल्सियस है, तो सबसे पहले मैं हीट प्रोवाइड करूंगा, तो वो क्या करने में यूटिलाइज होगा? टेम्परेचर चेंज करना 0 डिग्री। हाँ, तो सबसे पहले जो मैं हीट प्रोवाइड करूंगा वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। कहाँ तक वो इंक्रीज कर पाएगा? 0 डिग्री। 0 degree. तो आप देख सकते हो कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ ऐसे ऐसे उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। कहाँ तक ऐसा हुआ? 0 सेल्सियस। उसके बाद स्टिल यू आर अप्लाइंग द हीट, तो अब वो क्या करेगा? अब जो हीट State स्टेट change चेंज करेगा वाटर में। स्टेट चेंज करेगा, तो 1 किलोग्राम आइस को स्टेट चेंज करने के लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा? अभी डिस्कस। 333. 3 333 किलो जूल पर केजी। 1 केजी तो आइस है ही, तो 3.33 10⁻², 10⁻³ 10 करने से 10⁻5 जूल। Yes, sir. तो क्या ये Yes, sir. आपको ये वैल्यू आपको पता चल गया भैया? 3.35 यस सर। जूल पर केजी एग्जैक्टली। Yes. अब कहाँ तक ऐसा होगा? तो आप 333 किलो जूल हीट प्रोवाइड करोगे, तो 1 केजी आइस जो है वो कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में Water में वाटर में। बट उसका टेम्परेचर तो क्या रहेगा? 0 डिग्री। 0 degree. But once the whole ice gets converted into the वाटर the whole ice gets converted into the water, after that now what happened to start? Temperature change. Temperature increase. Increase हो. उसके बाद वापस से टेम्परेचर रेज होना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ तक ऐसा होगा? 100 100 degree Celsius. But once the temperature 100 Celsius achieved, after that what happened? एक बार 100 डिग्री सेल्सियस, स्टेट चेंज। उसके बाद State change. तो आप देख Vaporization. सकते हो कि वापस से ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, तो सिस्टम का अभी जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो टेम्परेचर रेज नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा? स्टेट State चेंज। change करें. State change करेगा. वो स्टेट चेंज करेगा। और जब तक पूरा जो वाटर है वो कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए, तो तब तक क्या होगा भैया? टेम्परेचर तो 100 ही रहेगा। 100 100 ही degree रहेगा। Celsius. एंड हाउ मच रिक्वायर्ड हीट इज रिक्वायर्ड? 2256 किलो जूल, मतलब 2.5 2.26 10⁻5 कह सकते हैं, 22.6 10⁻5 कह सकते हैं एग्जैक्टली। 22.6, that is 22.6 into 10⁻5 जूल पर केजी। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. और उसके बाद स्टिल इफ यू आर अप्लाइंग द हीट, देन व्हाट हैपन नाउ? Temperature. इंक्रीज होता जाएगा। तो क्या भैया ये पूरा ग्राफ आपको समझ में आया?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो यहाँ पे एक और चीज समझने लायक है कि यहाँ पे जो स्लोप है ना, उस ये स्लोप ज्यादा है। देखो इसका थोड़ा इंक्लिनेशन, थोड़ा स्लोप कम है, आप देख सकते हो। Yes, sir. तो ये स्लोप क्या इंडिकेट करता है पता है आपको? ये स्लोप जो है ना, दैट इज डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक हीट। इट इज डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक हीट। देखो देखो ये जब जब टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो स्पेसिफिक हीट पिक्चर में आएगा। बिकॉज करस्पॉन्डेंट टू द चेंज इन टेम्परेचर, व्हाट वाज द फॉर्मूला? एम। MC delta T. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आइस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जो स्लोप है वो स्लोप ज्यादा है। तो ये बता रहा है कि आइस का जो स्पेसिफिक हीट है ना, वो वाटर के स्पेसिफिक हीट से ज्यादा है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. आइस का स्पेसिफिक हीट वाटर के स्पेसिफिक हीट से ज्यादा है बिकॉज उसका स्लोप ज्यादा है। इज दैट क्लियर? वो तो जैसे वैसे वो आपको जस्ट समझने के लिए है, वो तो न्यूमेरिकल के अंदर Yes, sir. देंगे। स्पेसिफिक हीट अलग अलग चीज का यू विल बी गिवन, नो वरी अबाउट दैट। तो ये जो चीज थी वो मैंने आपको सिखाई कि कैसे पूरा प्रोसेस काम करता है। तो ये आपके कंटेंट में वैसे नहीं था, बट ये समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको समझाया। ओके Yes, sir. Yes, फ्रेंड्स, sir. अब हीट ट्रांसफर का जो 25th क्वेश्चन है ना, वो है भाई टाइप ऑफ द हीट ट्रांसफर। ये आपको 2 मार्क्स में प्रिपेयर करना है, बट उसका डिटेल स्टडी जो है ना वो कैंसल्ड है। तो मैं बताऊं आपको हीट ट्रांसफर किसको बोलते हैं पहले, उसके बाद में बताऊं कौन से क्वेश्चन कैंसिल। हीट ट्रांसफर तो नाम सुन के ही पता चल जाएगा भाई, ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विच इज कॉल्ड द हीट ट्रांसफर। मतलब एक प्लेस से हीट को दूसरे प्लेस में हम ले जाएंगे तो उसको हीट। Heat transfer. तो ये अलग अलग रीत से हो सकता है, अलग अलग मोड से हो सकता है। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे वाटर को हम बॉईल कर रहे हैं, तो जब आप वाटर को बॉईल कर रहे हो तो क्या होगा कि नीचे का जो लेयर है ना वाटर का, नीचे का जो लेयर है वो सबसे पहले गर्म होगा। यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो वो जो गर्म होगा तो अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका डेंसिटी। Come कम होगा. होगा. Decrease होगा. ये नीचे का जो लेयर है उसके डेंसिटी कम हो गया, मतलब वो थोड़ा लाइटर हो गया। तो बिकॉज ऑफ द बॉयंट ऊपर. वो क्या करेगा, वो ऊपर आ जाए. तो वो गर्म होके, वो नीचे से गर्म होके वो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर का कंपेरेबली कोल्डर, कंपेरेबली हॉट, लेस हॉटर लेयर विल कम्स टू बॉटम। इज दैट क्लियर? Yes, sir. दिस प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग एंड रिपीटिंग एंड रिपीटिंग। सो यहाँ पे ऊपर नीचे होता रहेगा और पूरे लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा ग्रेजुअली। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो ये जो हीट है ना वो पूरे लिक्विड के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ। Yes, sir. तो ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं पता है आपको? इसको कन्वेक्शन बोलते हैं, इसको थर्मल कन्वेक्शन बोलते हैं। बट मान लो कि यहाँ पे आपने एक मेटालिक रोड रखा है, मेटालिक रोड रखा है, तो मेटालिक रोड के ये जो एंड है ना उसको आपने हीट प्रोवाइड किया है, बट आपको पता चलता है कि थोड़ी देर में आपके हाथ में जो रोड का दूसरा जो एंड है वो भी आपको क्या फील होगा? सर आपकी आवाज चली गई थी. तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक रोड है, मेटालिक रोड है, उसका एक एंड मैंने सोर्स की तरफ रखा है, वहां पे मैंने हीट प्रोवाइड किया है। बट थोड़ी देर के बाद आपके दूसरा, आपका जो हाथ है वो दूसरे एंड पे रखा हुआ है आपने, तो आपको क्या फील होगा? Hot feel होगा. तो इट विल ऑल्सो बिकम्स हॉट। तो हमने हीट तो यहाँ पे प्रोवाइड किया था, बट ऑटोमेटिकली उसका ट्रांसफॉर्म क्या कहाँ पे हुआ? वो रोड के अंदर से आपके हाथ तक पहुंच गया। यस और नो? Yes, Yes, sir. तो ये जो प्रोसेस है वो थर्मल। sir. यहाँ पे ये जो हीट ट्रांसफर है, यहाँ पे देखो कोई मोलेक्यूल ऊपर नीचे नहीं होंगे। देखो आपको पता है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना, वो मोशन नहीं कर सकते, वो अपने खुद के
इक्विलिब्रियम स्टेट के आसपास, इक्विलिब्रियम प्लेस के आसपास जस्ट वाइब्रेट कर सकते हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जा सकते। लिक्विड में क्या था कि पूरा नीचे का लेयर ऊपर चला गया, ऊपर का लेयर नीचे आया, ऐसा ऊपर नीचे हुआ। क्या ये सॉलिड में ऐसा पॉसिबल है? सॉलिड में ऐसा पॉसिबल है क्या ये? नो नो सर। सर। तो सॉलिड में हीट ट्रांसफर हो, नो सर। सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर हीट ट्रांसफर तो हो रही है, बिकॉज एक एंड को गर्म किया तो दूसरा एंड भी हमको फील हुआ कि गर्म हो रहा है, तो हीट तो ट्रांसफर हो रही है। बट यहाँ पे मोलिक्यूल्स मोशन नहीं करते हैं एक प्लेस से दूसरे पे, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे इंटर एटमिक फोर्सेस के बदले यहाँ पे क्या होता है कि इंटर एटमिक फोर्सेस के वजह से ये हीट ग्रेजुअली यहाँ पे ट्रांसफर होता है। तो ये वाला जो मेथड है ना, उसको बोलते हैं थर्मल कंडक्शन। तो सॉलिड के अंदर जो होता है वो थर्मल कंडक्शन होता है, एंड दैट इज ड्यू टू द इंटरएटमिक और मोलिकुलर फोर्सेस की वजह से होता है ये। और ये जो लिक्विड ऊपर नीचे, ड्यू टू द एक्चुअल मोशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ड्यू टू द एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। और वो जनरली किस में हो सकता है? लिक्विड एंड गैस में ही हो सकता है। लिक्विड एंड गैस में ही ये थर्मल कन्वेक्शन हो सकता है, बिकॉज सॉलिड ऑब्जेक्ट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा ही नहीं पाएंगे। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट में जनरली क्या होता है भैया? वाइब्रेशन होता है। हाँ, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर ड्यू टू द वाइब्रेशनल मोशन एंड ड्यू टू द इंटरएटमिक फोर्सेस, हीट विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। सो दैट इज व्हाट इज द कंडक्शन। लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंस के अंदर पूरे जो मोलिक्यूल्स है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, अपने पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, उसको थर्मल कंडक्शन बोलते हैं। जैसे मुझे बताओ कि मान लो कि आपका यहाँ पे कोल्ड सीजन चल रहा है, अभी विंटर चल रहा है, तो अगर हमारे पास घर पे हीटर, तो हम क्या करेंगे कि रूम के एक कोने में हम हीटर वहां पे प्लेस करेंगे, तो वो कोने के आसपास की जो एयर है वो कैसी हो जाएगी? हॉट हो जाएगी। वो गर्म हो जाएगी। वो फिर उसके सपोज कि हमने फैन चालू किया तो पूरी जो एयर है वो पूरे रूम में घूमेगी, यस सर। पूरा रूम ग्रेजुअली हॉट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो मुझे बताओ ये जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, कंडक्शन है या कन्वेक्शन है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं फिर से बोल रहा हूं कि मान लो कि हमारे रूम के एक कोने में हमने हीटर लगाया हुआ है, तो उसके आसपास की हवा जो है ना वो गर्म हो जाएगी। फिर मान लो कि हमने फैन चालू किया तो पूरे रूम में वो हवा जो है ना, गर्म हवा, वो पूरे रूम में वहां पे स्प्रेड होगी, तो पूरा रूम गर्म हो जाएगा। तो सर वापस। यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसका रीजन क्या है? वो कौन सा टाइप का हीट ट्रांसफर है? यहाँ पे कन्वेक्शन है या कंडक्शन है? तो बताएगा कोई? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। तो ये जो है वो ऑब्वियसली कन्वेक्शन है, सही बात है आपका। So this is what is the convection. सर। हाँ बोलो। सर ये सॉलिड में पर वो वाइब्रेशन से बहुत ही कम पास होगी ना हीट। नहीं जाता, वो डिपेंडिंग ऑन द, देखो ये कंडक्शन के अमाउंट जो है ना वो कितना टेम्परेचर डिफरेंस है और एरिया कितना है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि सर वाटर में तो हम मतलब हाथ डाल के चेक करते हैं तो वो सेम ही गर्म होता है, पर इसमें तो वो पीछे की साइड बहुत ही कम गर्म होता है। हीट का ट्रांसफर कितना होगा उसके इक्वेशन है, कंडक्शन के भी इक्वेशन है, कन्वेक्शन के भी इक्वेशन है, और वो इक्वेशन कैंसल्ड है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो कंडक्शन का जो इक्वेशन है हीट ट्रांसफर का, तो वो ये है के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, where delta t is the difference of the temperature, delta x is the distance between the 2 points, k is the thermal conductivity,
एंड ए इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो कंडक्शन कन्वेक्शन के अलग अलग इक्वेशन है, बट एक ऐसा भी हीट ट्रांसफर का एक ऐसा भी टाइप है कि जिसके अंदर सॉलिड लिक्विड या गैस सब्सटेंस की जरूरत ही नहीं है। हीट ट्रांसफर का एक ऐसा भी एक एक ऐसा भी टाइप है जिसके अंदर कोई मटेरियल की जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे बैठे हैं जमीन पे, कैंप फायर किया है कभी? यस सर। यस सर। तो वहां पे कोई, मान लो कि कोई एयर नहीं है, लिक्विड सॉलिड कुछ भी नहीं है, तो भी वो जो सोर्स है जहां पे आपने हीट प्रोड्यूस किया है, वहां से आपके शरीर तक, आपके बॉडी तक हीट मिलेगा आपको। तो ये जो मेथड है उसको, ये जो मेथड है ना, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके तरफ आते हैं, तो इसको बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। तो हीट ट्रांसफर के 3 टाइप है, थर्मल कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सन एंड अर्थ के बीच में ऐसा एक स्पेस है कि जो वैक्यूम है, जहां पे कोई सॉलिड लिक्विड गैस सब्सटेंस नहीं है, तो भी सन में से अर्थ तक हीट पहुंचती है। तो मुझे बताओ कि ये हीट ट्रांसफर का कौन सा टाइप है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन। तो ये दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द रेडिएशन। इज दैट क्लियर? तो यस सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपको एज ए 2 मार्क प्रिपेयर करना है। व्हाट इज हीट ट्रांसफर, discuss the thermal radiation, discuss its type of the thermal heat transfer. So heat can be transferred by the 3 types: conduction, convection and radiation. Is that clear friends? यस सर। तो देखो यस यहाँ सर। पे जो एयर नीचे से, देखो यहाँ पे जो एयर है ना, एयर वो नीचे से ऊपर गई, तो ये कौन सा टाइप है? कन्वेक्शन। 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 ये रोड को गर्म किया तो ये क्या हो गया? और ये कंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे तरफ पहुंचे तो ये क्या हो गया? रेडिएशन। रेडिएशन। तो एक ही फिगर में तीनों चीज दिखाई हुई। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। अब ये तीनों टाइप, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये तीनों टाइप डिटेल में है, बट वो डिटेल स्टडी कैंसल्ड है। वो डिटेल स्टडी जो है उसको अभी उन लोगों ने, सीबीएसई वालों ने भी, गुजरात बोर्ड वालों ने भी कैंसिल किया हुआ है। तो ये कंडक्शन का पूरा डिटेलिंग स्टडी है, कन्वेक्शन, रेडिएशन पूरा स्टडी है। तो क्वेश्चन नंबर 27, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 कैंसल है। 37 तक सब कुछ कैंसल है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अब 2 टॉपिक है। यस सर। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपके सिलेबस में है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। उसके बाद ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी है, एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट कैंसिल किया हुआ है वापस से, एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वापस से। तो अब 2-3 थियोरी बाकी है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलो, तो रेडिएशन ऑफ द ब्लैक बॉडी पे आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, 38th क्वेश्चन यू नीड टू प्रिपेयर एज अ 2 मार्क्स। इस चैप्टर में बहुत कम क्वेश्चन ऐसे है कि जो मैंने आपको बोला है कि प्रिपेयर करना है। लास्ट लेक्चर के 3-4 क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन आपको लर्न बाय हार्ट करने थे, 3-4 क्वेश्चन। अब आज के लेक्चर का ये पहला क्वेश्चन है कि जो दूसरा क्वेश्चन है कि जो आपको लर्न बाय हार्ट करना है। ओके, तो यस सर। क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो फ्रेंड्स, ब्लैक बॉडी के रेडिएशन का ग्राफ ड्रॉ करने में आया। यहाँ पे बहुत प्रॉपर नहीं है, मैं आपको बताऊं क्या है ग्राफ। तो ब्लैक बॉडी के रेडिएशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करने का ट्राई किया। टेम्परेचर को हमने चेंज करते गए हम ब्लैक बॉडी के,
एंड उसमें से कौन कौन से वेवलेंथ का क्या अमाउंट है, कितना एनर्जी है, कौन से वेवलेंथ का कितना एनर्जी है, वो ध्यान में रख के हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो कुछ ऐसा मिल रहा है। पहले हमने ब्लैक बॉडी को T1 टेम्परेचर पे रखा था। T1 टेम्परेचर इज द हाईएस्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर T1 पे रखा था। ये जो है ना वो एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वेवलेंथ ऐसा है। मतलब फॉर इट इज द रेडियंट एनर्जी ऑफ गिवन वेवलेंथ। इन अदर वे आई कैन से इट इज द रेडियंट एनर्जी ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी और गिवन वेवलेंथ। रेडियंट एनर्जी, रेडियंट एनर्जी का मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो। तो T1 टेम्परेचर पे रखा तो रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी के अलग अलग वेवलेंथ्स मुझे ऐसे मिले, ये वेवलेंथ। तो आप देख सकते हो कि कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसा है कि जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा है। देखो ये λ1 मान लेते हैं इसको। और अभी जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया वो ब्लैक बॉडी को, ब्लैक बॉडी क्या है, तो भाई ऐसा बॉडी है, ब्लैक बॉडी ऐसा बॉडी है कि जिसके अंदर अगर कोई उसके अंदर रेडिएशन जाता है तो वो 100% एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। कोई ऐसा बॉडी कि अगर जिसके अंदर हम रेडिएशन को इंसिडेंट कराते हैं, रेडिएंट एनर्जी को, और वो कंप्लीटली उसको एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। जैसे मैंने इस टाइप का एक स्पेशली एक स्फेरिकल, ये स्फीयर है, ये स्फेरिकल शेल है, और मैंने इसको इस हिसाब से बनाया हुआ है कि मान लो कि कोई यहाँ पे रेडिएशन इसके केविटी के अंदर एंटर होता है, तो वो एंटर तो होगा बट फिर वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होके एट दैट एवरी टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन इट विल लॉसेस सम एनर्जी, और पूरा ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस कैविटी दिस बॉडी बिहेव एज अ, with respect to this cavity this body behave as a black body। तो ब्लैक बॉडी की ब्लैक बॉडी कि जिसके अंदर अगर आप एनर्जी इंसिडेंट कराते हो तो वो अगर 100% उसका एब्जॉर्प्शन कर लेता है तो उसको कंप्लीटली ब्लैक बॉडी बोलते हैं। बट ऐसा रूल है कि जब ब्लैक बॉडी गर्म होती है तो वो, देखो सीधी सी बात है, कोई ठंडी बॉडी जो होती है ना, जो कोल्डर बॉडी है वो एब्जॉर्ब करेगी, बट वो जब हॉटर, और जब वही बॉडी अगर हॉटर है विथ रिस्पेक्ट टू इट सराउंड, with respect to the surround, if the body is have a large temperature, तो फिर वो क्या करेगा, वो हीट को एब्जॉर्ब रिलीज करेगा, उसको रिलीज रिलीज करेगा। रिलीज करेगा। तो मैंने क्या किया कि ये जो ब्लैक बॉडी है ना उसका टेम्परेचर मैंने T1 रखा, एंड T1 इज मच लार्जर देन द सराउंड टेम्परेचर, सराउंड टेम्परेचर से बहुत ही ज्यादा है, तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। तो वो इसी कैविटी में से, जिस कैविटी में उसने एब्जॉर्ब किया था उसी कैविटी में से वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। लूज कर, तो वो रिलीज किया हुआ जो एनर्जी है उसका ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, उसका मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है। इज दैट क्लियर? तो मुझे पता चला कि कौन से कोई पर्टिकुलर एक वेवलेंथ ऐसा है कि जिसका एनर्जी सबसे सबसे ज्यादा है। ज्यादा। अब फिर मैंने जो ना थोड़ा टेम्परेचर रिड्यूस किया, तो थोड़ा टेम्परेचर रिड्यूस करके मैंने ग्राफ ड्रॉ किया ना, तो मुझे कुछ ऐसा मिला। तो वो तो चीज कंफर्म्ड थी कि अगर टेम्परेचर रिड्यूस करोगे ना तो उसका जो रेडिएशन होगा वो भी थोड़ा कम होगा, तो रेडिएंट एनर्जी कम रहेगी, तो पता ही था। मतलब ये ग्राफ नीचे तो जाने वाला था वो पता ही था, बट यहाँ पे समझने लायक चीज ये है कि मैक्सिमम एनर्जी का जो वेवलेंथ था वो थोड़ा राइट साइड शिफ्ट हुआ। देखो मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डेंट जो वेवलेंथ है ना वो थोड़ा राइट साइड शिफ्ट हो गया, देखो λ2। और फिर मैंने एक बार और टेम्परेचर रिड्यूस करके, एक बार और टेम्परेचर को रिड्यूस करके मैंने वापस से ये ग्राफ को ड्रॉ किया। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अगर टेम्परेचर आप रिड्यूस करोगे तो रेडिएशन आपको कम मिलेगा, तो रेडिएशन तो कम हो ही रहा है, बट जिस वेवलेंथ के लिए रेडिएशन मैक्सिमम मिल रहा है वो वेवलेंथ वापस से थोड़ा राइट साइड शिफ्ट हो रही है। देखो तो मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर रिड्यूस कर रहा हूं ऐसे ऐसे मैक्सिमम एनर्जी वाला जो वेवलेंथ है वो उसका वैल्यू क्या राइट साइड जाना, मतलब राइट साइड जाना मतलब बढ़ना या डिक्रीज होना,
ये वेवलेंथ राइट, बढ़ना। ये जो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर रिड्यूस करके एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो जिसके लिए मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी, वो जो वेवलेंथ है वो शिफ्ट हो रही है राइट साइड। राइट साइड शिफ्ट होना मतलब इसका वैल्यू बढ़ना, तो मतलब कि ये बढ़ रहा है। तो एनर्जी, मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी जिस वेवलेंथ के लिए मिल रही है, द वेवलेंथ फॉर विच द एनर्जी रिलीज्ड मैक्सिमम, द वेवलेंथ फॉर विच द रेडिएंट एनर्जी इज मैक्सिमम, कैन आई से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? The wavelength for which the radiant energy is maximum is inversely proportional to temperature. क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? Yes or? यस सर, ये बिकॉज जैसे जैसे आप टेम्परेचर रिड्यूस करते हो तो वेवलेंथ वो इंक्रीज होता है, वाइस वर्सा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वो वेवलेंथ रिड्यूस होता है, रेडियन। अपोजिट रिलेशन है। तो ये जो इक्वेशन है उसको ही बोलते हैं विन डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसको क्या बोलते हैं? विन डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। तो अगर स्टेटमेंट बोलना है तो क्या बोल सकते हो आप स्टेटमेंट? The wavelength for which the radiant energy is maximum, wavelength for which the radiant energy is maximum is inversely proportional to the absolute temperature. ये बात ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट मस्ट बी इन द केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो द वेवलेंथ फॉर विच the radiant energy is maximum is inversely proportional to the absolute temperature. This statement is known as a Wien's displacement law. क्या ये चीज आपको समझ में आई? यस सर। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लैम्बडा m इंटू टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? P proportional to 1 upon V, तो PV is equals to constant लेते हो ना आप? Yes or no? यस सर। यस सर। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बोलते हैं विंस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? विंग्स कांस्टेंट। विंग्स कौन? एंड उसका जो वैल्यू है वो भी फिक्स्ड है, उसका वैल्यू भी फिक्स्ड है, एंड दैट वैल्यू इज 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। सी का जो यूनिट आएगा वो मीटर इंटू केल्विन आएगा ना, लैम्बडा मीटर में, टी केल्विन में। तो विंस कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो क्या है भैया? 2.9 into 10⁻³ 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो फ्रेंड्स ये थ्योरी आपको प्रिपेयर करना है, विंस डिस्प्लेसमेंट लो आपको प्रिपेयर करना है। तो देखो क्या लिखा है, थर्मल रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ अ डिफरेंट वेवलेंथ। कोई भी बॉडी में से जो रेडिएशन आता है उसमें बहुत सारी वेवलेंथ होती है, बट कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसा होता है कि जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। लाइक देखो क्या लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड द वेवलेंथ्स ऑफ दिस वेव्स फॉर्म अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बट amount of the electromagnetic wave of certain definite frequency is more. Figure shows that the graph of the spectral emissive power versus wavelength. Spectral emissive power का मतलब emitted energy versus wavelength at different temperature. मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ग्राफ है वो बराबर प्रॉपर नहीं है, बट मैंने आपको प्रॉपरली दिखाया था। From the graph, it is clear that with increase in the temperature, wavelength corresponding to the maximum value decreases. So इसका मतलब ऐसा हुआ कि अपोजिट रिलेशन है। तो उसके ऊपर से विन साइंटिस्ट ने एक रूल बनाया, द वेवलेंथ ऑफ emitted radiation from the surface, the wavelength lambda m for maximum, यहाँ पे maximum लिखना रह गया है, the wavelength lambda m of a maximum emitted radiation from the surface of any body is inversely proportional to its absolute temperature. So this is what is the Wien's displacement law. So lambda m into T is a constant. This equation is called Wien's displacement law, and the constant here is called Wien's constant, and its value is 2.9 × 10⁻³ meter Kelvin.
Wind's law is useful to estimate the temperature of the surface of the space object like a sun and moon and solar. देखो बहुत 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 मजे की बात यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई ये काम कहाँ पे आएगा, ये विंड डिस्प्लेसमेंट लो का काम क्या है. तो फ्रेंड्स, now you will be surprised by knowing that on the sitting on the earth, on the residing on the earth, we can measure the temperature of the sun and moon just within a click. तो फ्रेंड्स, ये विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ का बेनिफिट ये है कि हम अर्थ पे बैठे बैठे स्पेस ऑब्जेक्ट्स, सन, मून, स्टार के टेम्परेचर आराम से मेजर कर सकते हैं. कैसे? तो मैं आपको बताऊं, वो बॉक्स में लिखा हुआ है. ऐसा पता चला कि मून के द्वारा जो रेडिएशन आता है रात को मून के द्वारा जो रेडिएशन आता है, तो कोई मीटर के द्वारा उसके वेवलेंथ को मेजर किया. तो ऐसे मीटर आते हैं कि जिसके द्वारा हमको ये रेडिएशन का वेवलेंथ मिल जाता है. तो कोई मीटर के द्वारा उसका वेवलेंथ मेजर किया तो पता चला कि भाई मैक्सिमम एनर्जी जिसका है वो वेवलेंथ है ना 14 माइक्रोमीटर है. रात को मून में से जो चांदनी आती है, चांद की चांदनी, तो वो चांदनी जो है, जो मून की जो रोशनी है, उसके वेवलेंथ को देखा, परखा, जाना, तो पता चला कि मैक्सिमम एनर्जी वाला जो वेवलेंथ है ना वो 14 माइक्रोमीटर है. तो बस जस्ट अप्लाई द विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, just apply the wind displacement law and that's it, you get the temperature of the moon simply. तो lambda m into t is equals to constant. lambda m तो हमने जाना परखा 14 माइक्रोमीटर है, कांस्टेंट का वैल्यू भी हमको पता है. तो इसके द्वारा हमको मून का टेम्परेचर, मून के सरफेस का टेम्परेचर कितना है वो मुझे मिल गया बैठे बैठे. आया बात समझ में? जब मजे की बात, जबरदस्त चीज है ना. इज दैट क्लियर टू यू? यस सर. तो ये आपके नॉलेज के लिए है, मैंने एक्स्ट्रा, यस सर, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है. बट मून के सरफेस का टेम्परेचर 200 केल्विन जितना होता है वो सही बात है, और बहुत सिंपली वो हम चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. शायद आपने सन के सरफेस का टेम्परेचर जाना होगा कि 600 केल्विन है, कहीं देखा 6000 केल्विन है, कहीं पे सुना है ये चीज? सन के सरफेस का टेम्परेचर 6000 केल्विन है, ऐसा कहीं पे सुना है आपने? 10th स्टैंडर्ड में आई थिंक यू हैड लर्नड अबाउट दिस. यस और नो? आई डोंट नो. नो सर, नहीं? नो अच्छा, सर, वी डोंट नो. कोई बात नहीं. तो आज पता चल गया आपको कि भाई सन में से जो रेडिएशन आता है वो हमने चेक किया तो पता चला कि मैक्सिमम एनर्जी वाला जो रेडिएशन है ना उसके वेवलेंथ का वैल्यू 3753 एंगस्ट्रॉम है, 4753 एंगस्ट्रॉम है. बस, तो दैट्स इट, दैट्स बात खत्म हो गया. तो आपको जस्ट अप्लाई द विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ. कांस्टेंट का वैल्यू तो फिक्स्ड ही है 2.9 10⁻⁻³ लैम्डा का वैल्यू पता है, तो यू कैन गेट द टेम्परेचर ऑफ द सन सरफेस सिंपली. तो क्या फ्रेंड्स ये आपको पता चला? यस सर. फ्रेंड लोग कैसे काम का है पता चला आपको? यस सर. यस सर, तो ये बॉक्स के अंदर जो दिया हुआ है दैट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, चलो अब कुछ डेफिनेशंस हम प्रिपेयर करेंगे. 4-5 डेफिनेशन है. तो ये सारे डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द 2 और 3 मार्क्स, इट इज इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशंस IMP. सो ये 39th क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करना ही है. सबसे पहले एब्जॉर्प्टिविटी. तो एब्जॉर्प्टिविटी किसको बोलते हैं? तो मैं 1 by 1 आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच ऑफ द डेफिनेशन. तो सबसे पहले एब्जॉर्प्टिविटी को डिफाइन करेंगे हम. तो फ्रेंड्स, एब्जॉर्ब्ड रेडिएंट एनर्जी अपॉन इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिविटी. मान लो कि ये कोई बॉडी है, और इसके अंदर आपने 100 जूल एनर्जी का रेडिएशन इंसिडेंट कराया, बट क्या हुआ कि उसमें से 75 जूल जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो गया, 25 उसने एब्जॉर्ब कर लिया, 25 जूल एब्जॉर्ब कर लिया. तो एब्जॉर्प्टिविटी का डेफिनेशन क्या है कि एब्जॉर्ब्ड रेडिएंट एनर्जी अपॉन इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी. 75/100. तो ये आपका हो जाएगा 75/100. तो इसका सर 25/100 आएगा ना? अरे 25/100 आएगा, 75 तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब कितना हुआ? यस सर, 25. 0.25. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स?
Yes, sir. Radiant energy absorbed upon incident radiant energy, that is called the absorptivity. Is that clear, friends? Yes, sir. चलो, कोई मुझे बताएगा ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिविटी कितना है? कोई बताएगा कि ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिविटी कितना है? 1. 1। भैया, ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी है कि जिसके अंदर आप जितना भी डालोगे वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन ही तो वही है कि भैया द बॉडी विच एब्जॉर्ब कंप्लीट एनर्जी विच इज इंसिडेंट ऑन इट। तो कोई ऐसा पूछे कि भाई ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिविटी कितना है, तो क्या लिखोगे भैया? 1. 1। मान लो कि आपके पास आइडियल मिरर है। आइडियल मिरर है, आइडियल का मतलब जो 100% रिफ्लेक्शन करता है। तो आइडियल मिरर का एब्जॉर्प्टिविटी क्या होगा? 0. 0। बिकॉज देखो, वैसे आइडियल मिरर होते ही नहीं, कोई होता ही नहीं है। बट मान लो कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हमारे पास आइडियल मिरर है जो 100% एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देगा, तो उसका एब्जॉर्प्टिविटी अगर पूछे तो क्या आएगा आंसर? 0. 0. देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई बॉडी 100% ब्लैक बॉडी नहीं होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी बॉडी 100% एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। बट जो नियरेस्ट ब्लैक बॉडी है, नियरेस्ट ब्लैक बॉडी के सबसे नियरेस्ट है, वो लैंप ब्लैक है। गुजराती में दीवानी मेश, लैंप ब्लैक। तो वो जो है ना, दैट इज दी वेरी नियर टू द ब्लैक बॉडी। इट इज अ 98% ब्लैक बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर आप जितना भी एनर्जी डालोगे तो वो कितना एब्जॉर्ब कर लेगा? 98%. 98% एब्जॉर्ब कर लेगा। सिल्वर, आपको शायद पता होगा कि मिरर के जो मिरर बनाने के लिए सिल्वर का यूज होता है, पता है आपको? नो सर, नहीं पता. सिल्वर मैंने बताया आपको, अभी बताया ना। तो सिल्वर जो होती है ना, तो दूसरे सारे मेटल से सिल्वर का रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होता है। सिल्वर का रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होता है। तो मिरर को बनाने के लिए सिल्वर इसलिए यूज होता है कि वो सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन करती है। इट इज ओनली 2% ब्लैक बॉडी। सिल्वर जो है ना, वो 2% ही ब्लैक बॉडी है। मतलब कि सिल्वर का कोई अगर आपको एब्जॉर्प्टिविटी पूछे तो क्या लिखोगे आप सिल्वर का? 2. 2 नहीं लिख सकते आप। 98%. अरे, सिल्वर का एब्जॉर्प्टिविटी होगा 0.02। वो 2% एब्जॉर्ब करता है, मतलब 100 जूल 100 जूल डालोगे तो 2 जूल का ही एब्जॉर्प्शन होगा। तो 2 डिवाइड बाय 100 का मतलब 0.02। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. तो फ्रेंड्स, एब्जॉर्प्टिविटी में 3 एमसीक्यू हो गए। फॉर अ ब्लैक बॉडी, व्हाट इज द एब्जॉर्प्टिविटी? 1। 1. फॉर लैंप ब्लैक, तो लैंप ब्लैक के लिए एब्जॉर्प्टिविटी हो जाएगा 0.98। 0.02. एंड नंबर 3 फॉर अ सिल्वर, तो सिल्वर का एब्जॉर्प्टिविटी हो जाएगा 0.02। चलो, एब्जॉर्प्टिविटी क्या है वो आपको समझ में आया? Yes, sir. चलो, अब हम करेंगे टोटल एमिसिव पावर एंड स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। टोटल एमिसिव पावर एंड स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। तो टोटल एमिसिव पावर का डेफिनेशन ऐसा है कि टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया per unit time at a given temperature is called a total emissive power। तो उसका डेफिनेशन मैं वापस से बोल रहा हूं। फॉर द गिवन टेम्परेचर, a total radiant energy per unit surface area per unit time is defined as a total emissive power। So what should be the unit of the total emissive power? उसका यूनिट क्या होना चाहिए? What should be Joule the per unit? meter square.
और बताओ, जूल पर मीटर स्क्वायर, टाइम भी है ना नीचे, पर सेकंड, तो इट शुड बी अ पर वॉट। सेकंड। हाँ, वॉट पर मीटर स्क्वायर, इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? जूल पर सेकंड वॉट होता है, तो वॉट। यस सर। अब ये टोटल एमिसिव पावर में टोटल रेडिएंट एनर्जी है। टोटल रेडिएंट एनर्जी का मतलब सभी वेवलेंथ को कंसीडर करके, सभी वेवलेंथ को कंसीडर करके जो पूरा रेडिएशन मिलता है, वो सब कुछ रेडिएंट एनर्जी पूरा कंसीडर करना है आपको। सो टोटल रेडिएंट एनर्जी करस्पॉन्डेंट टू द ऑल द वेवलेंथ्स per unit area per unit time is defined as a total emissive power. बट अब मैं जो बात कर रहा हूं वो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर की है। तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर जो है ना, वो टोटल एमिसिव पावर जैसा ही है, बट खाली एक जगह पे चेंज होगा। तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का डेफिनेशन भी वही आएगा कि भाई रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम फॉर द गिवन टेम्परेचर, बट करस्पॉन्डेंट टू द गिवन वेवलेंथ ओनली। कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करती है, कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है वो अगर देखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा भैया? स्पेक्ट्रल एमिशन। तो वो हो जाएगा आपका स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। तो डेफिनेशन वही है कि भाई रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम फॉर द गिवन पर्टिकुलर वेवलेंथ at given temperature is defined as a spectral emissive power of that wavelength. तो क्या ये चीज आपको समझ में आई? यस सर। सर और सीधी मतलब सी ये बात है, कोई भी वेवलेंथ हो सकती। मतलब आपको 1 मिनट में समझ में आएगा। मतलब इसका मतलब ऐसा हुआ कि अलग अलग वेवलेंथ के स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल तो एमिशन हमको पावर। टोटल एमिसिव पावर मिल जाएगा। देखो क्या चीज क्या होती है मैं बताऊं। मान लो कि ये आपका बॉडी है, राइट? तो ये बॉडी में मुझे पता चला कि टोटल 500 जूल जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, बट उसमें से ये पता चला कि 150 जूल जो है ना, वो एनर्जी 50 हर्ट्ज का है। 100 जूल जो है ना, वो पता चला कि 60 हर्ट्ज का है, उसका फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। फिर ये पता चला कि भाई ये 500 में से 200 जो जूल है ना, उसका जो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ माने फ्रीक्वेंसी, बिकॉज आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी इनटू द वेवलेंथ इज इक्वल्स टू सी होता है। केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे कि भाई लैम्बडा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन अपॉन एफ। यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। मतलब फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ आप इंटरचेंज कर सकते हो वर्ड को, बिकॉज एक दूसरे के द्वारा मिल सकता है वो एक दूसरे का। 200 जूल जो है ना, वो पता चला कि भाई 25 हर्ट्ज वाला है। एंड हो गया कितना बाकी बचा? 50 जूल बाकी बचा। तो वो 50 बचा। 10 हर्ट्ज का है। तो मतलब यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 अलग अलग वेवलेंथ्स जनरेट हो रही है। तो सबका मिला के जो होगा वो टोटल एमिसिव पावर होगा। बट अगर हम यहाँ पे इसी फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला में अगर हम 150 जूल लिखते हैं, तो दैट विल बी अ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ द फर्स्ट वेवलेंथ। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अलग अलग वेवलेंथ की अगर एनर्जी को कंसीडर करेंगे तो वो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर हो जाएगा। अगर टोटल एनर्जी को कंसीडर करेंगे तो वो टोटल एमिसिव पावर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। और सीधी सी बात है कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर जितने भी है हमारे पास अलग अलग वेवलेंथ के, तो उसका अगर एडिशन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल एमिसिव टोटल पावर। एमिसिव पावर। देखो अब एब्जॉर्प्टिविटी क्या है वो हमको पता चल गया, एमिसिविटी क्या है वो भी हमको पता चल गया। नहीं, एमिसिविटी बाकी है, एमिसिविटी बाकी है। एमिसिव, टोटल एमिसिव पावर क्या है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या है वो पता चल गया। अब एमिसिविटी, तो फ्रेंड्स एमिसिविटी किसको बोलते हैं? देखो एब्जॉर्प्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन इंसिडेंट एनर्जी, वो एब्जॉर्प्टिविटी। अब एमिसिविटी क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का टोटल एमिसिव पावर, कोई भी ऑब्जेक्ट का टोटल एमिसिव पावर अपॉन टोटल एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी का एट द सेम टेम्परेचर। तो द रेशियो ऑफ टोटल एमिसिव पावर ऑफ एनी गिवन बॉडी टू द टोटल एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी फॉर द सेम टेम्परेचर
kept at the same temperature, that is called the absorptivity. Sorry, that is called the emissivity. तो it is emissivity का definition क्या है? The ratio of total emissive power of any body, any object to the total emissive power of a black body at the same temperature. That is called the emissivity. तो कोई मुझे बताएगा कि ब्लैक बॉडी का एमिसिविटी क्या होगा? ब्लैक बॉडी 1 बिकॉज न्यूमरेटर में भी ये ब्लैक बॉडी आ जाएगा, डिनोमिनेटर में तो वैसे भी ब्लैक बॉडी है. न्यूमरेटर में भी ब्लैक बॉडी आ जाएगा, डिनोमिनेटर में तो वैसे भी ब्लैक बॉडी है. तो एमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी क्या आएगा भैया? 1. और फाइनली फ्रेंड्स, किरचॉफ, ही वॉज नॉट द स्विच-ऑफ, ही वॉज अ किरचॉफ. तो किरचॉफ ने ये बताया कि कोई भी बॉडी है तो उसका एमिसिविटी एंड एब्जॉर्प्टिविटी सेम ही होता है. कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए एब्जॉर्प्टिविटी एंड एमिसिविटी सेम ही होता है. दिस इज कॉल्ड द किरचॉफ्स लॉ. तो ब्लैक बॉडी का एमिसिविटी भी 1 है, एब्जॉर्प्टिविटी भी 1 है. लैंप ब्लैक का एमिसिविटी भी 0.98 है, एब्जॉर्प्टिविटी भी 0.98 है. लैंप ब्लैक का वो हो गया. सिल्वर का एमिसिविटी भी 0.02 है, एब्जॉर्प्टिविटी भी 0.02 ही है. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? कोई भी बॉडी का एब्जॉर्प्टिविटी एंड एमिसिविटी सेम ही होगा. अब इसका मीनिंग क्या? इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये हुआ कि जो बॉडी अच्छा एब्जॉर्बर है वही बॉडी अच्छा एमिटर भी है. मतलब जब उसका टेम्परेचर सराउंड से कम होगा, जब बॉडी का टेम्परेचर सराउंड से कम होगा तो वो सराउंड में से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. उसका मान लो कि उसका एब्जॉर्प्टिविटी ज्यादा है, तो उसी बॉडी, जब वही बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा सराउंड से, तो वो क्या करेगा? ज्यादा एमिट करेगा. वो ज्यादा एमिट, मतलब जो बॉडी ज्यादा अच्छा एब्जॉर्बर है वही अच्छा एमिटर है. बट कंडीशन चेंज हो जाएगा. अगर उसका खुद का टेम्परेचर कम है तो वो एब्जॉर्ब करेगा सराउंड से, अगर टेम्परेचर कम है तो एब्जॉर्ब करेगा. उसी का टेम्परेचर अगर सराउंड से ज्यादा हो जाएगा तो वो ज्यादा एमिट करेगा. बट ये एक चीज कंफर्म्ड है कि जो बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है वही बॉडी ज्यादा एमिट करता है. इसी के वजह से तो क्या होता है कि जो चीज जल्दी गर्म होती है वही चीज जल्दी से ठंडी भी होती है. जैसे मेटालिक स्पून सोचो आप, मेटालिक स्पून, तो मेटालिक स्पून फटाफट गर्म भी होगी एंड वही मेटालिक स्पून अगर आप सराउंड में रख दोगे तो वो फटाफट ठंडा भी हो जाएगा. बट पानी के बारे में सोचो, तो पानी धीमे धीमे गर्म होता है, वो ठंडा भी धीमे धीमे ही होता है. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? जो बॉडी Yes, sir. अच्छा एब्जॉर्बर है वही बॉडी अच्छा एमिटर भी है. जो बॉडी ज्यादा फटाफट होती है वही बॉडी ज्यादा फटाफट ठंडी भी होगी. समझ में आया प्लीज फ्रेंड्स? ये सब कुछ समझ में? Yes, sir. तो फ्रेंड्स ये सारे डेफिनेशंस हमने डिस्कस कर लिए उसके फंडामेंटल के साथ. लास्ट में किरचॉफ ने क्या बताया, किरचॉफ ने वो भी हमने डिस्कस कर लिया. तो ये टॉपिक आपको पूरा प्रिपेयर करना है, समझना है. आपके पास जो नोट्स होगा यहाँ पे उसमें सिग्मा लिखा होगा, लिखा है ना सिग्मा यहाँ पे? मतलब स्पेक्ट्रल एमिशन पावर का अगर हम समेशन करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल एमिसिव पावर. Total emission power. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो भी आपको प्रिपेयर करना है. ये डेफिनेशन वाला क्वेश्चन आपको एज ए डेफिनेशन प्रिपेयर करना है. 4-5 डेफिनेशन है, वो इस हिसाब से प्रिपेयर करो. और अभी जो क्वेश्चन मैं कराने जाने वाला हूँ वो आपको एज ए 2 मार्क लर्न बाय हार्ट करना है. अभी जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो आपको लर्न बाय हार्ट करना है एज ए 2 मार्क. एक्सप्लेन द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. तो सर फ्रेंड कितने मार्क्स का होगा? ये 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट. ओके सर. तो फ्रेंड्स स्टीफन ने 1879 के अंदर एक्सपेरिमेंटली एंड बोल्ट्जमैन ने थ्योरेटिकली, स्टीफन ने एक्सपेरिमेंटली, बोल्ट्जमैन ने थ्योरेटिकली ये प्रूव कर दिया कि कोई भी बॉडी का जो टोटल एमिसिव पावर है, टोटल एमिसिव पावर मतलब
radiant energy per unit time per unit area. Total emissive power, that means radiant energy per unit time per unit area जो होता है वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4 पावर के प्रपोर्शन में होता है. What they had proved, the amount of the radiant energy emitted per unit area per unit time is directly proportional to the 4th power of its absolute temperature. Is that clear, friends? Yes, sir. So that is called the Stefan-Boltzmann law. स्टीफन ने प्रैक्टिकली एंड बोल्ट्जमैन ने थ्योरेटिकली ये प्रूव कर दिया कि कोई भी बॉडी का टोटल एमिसिव पावर मतलब रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम, that is the total emissive power, is directly proportional to the 4th power of its absolute temperature. Once again I am telling you कि wind displacement law and ये Stefan Boltzmann law, ये दोनों में temperature must be taken in the Kelvin. This is to be remember in the wind displacement law as well in the Stefan Boltzmann law. दोनों में आपको ये टेम्परेचर केल्विन में लेना है. अगर वो केल्विन में नहीं है तो सबसे पहले उसको केल्विन में कन्वर्ट करो. ओके? Yes, sir. Yes, sir. अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट आएगा. ऐसा पॉसिबल है, एक के बदले 2 कांस्टेंट आए, ऐसा पॉसिबल है. तो प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट आएगा. यहाँ पे एक जो कांस्टेंट है वो एमिसिविटी है एंड दूसरा जो कांस्टेंट है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. इट इज कॉल्ड द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. उसका जो वैल्यू है वो 5.67 उसका वैल्यू फिक्स्ड है. 5.67 10⁻⁻8. व्हाट शुड बी इट यूनिट? चलो ये W का यूनिट याद है ना आपको, वॉट पर मीटर स्क्वायर है, एमिसिव पावर है. तो W का यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर है. एमिसिविटी का कोई यूनिट नहीं होगा. क्यों? बिकॉज एमिसिविटी इज इक्वल टू टोटल एमिसिव पावर of a body upon total emissive power of a sun of a black body. बॉडी का एमिसिव पावर अपॉन ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर, तो वो तो पावर अपॉन पावर, तो रेशियो तो सेम ही, क्वांटिटी का रेशियो यूनिटलेस हो जाएगा. तो एमिसिविटी तो यूनिटलेस है. इसका जो यूनिट है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर है. ये केल्विन रेज़ टू 4. तो ई का क्या यूनिट, तो ये सिग्मा का यूनिट क्या होगा? वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. बोर्ड के JEE के अंदर एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो भैया? Yes, sir. तो फ्रेंड्स ये जो इक्वेशन है ना वो तभी वैलिड है जब बॉडी का खुद का टेम्परेचर उसके सराउंड से बहुत ही ज्यादा है. दिस इक्वेशन इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज मच मच लार्जर देन द टेम्परेचर ऑफ सराउंड. अब ये तो आपको पता है ना ये क्या है, ये तो टोटल एनर्जी एमिटेड, इट इज अ रेडिएंट एनर्जी Per unit area, per unit time. पर यूनिट टाइम है, इज इक्वल्स टू सिग्मा ई टी रेज़ टू 4. बट एनर्जी अपॉन टाइम तो कैन आई से इट इज अ हीट रेट और हीट करंट. देखो चार्ज अपॉन टाइम मतलब इलेक्ट्रिक करंट, तो हीट एनर्जी अपॉन टाइम, रेडिएंट एनर्जी अपॉन टाइम, तो कैन आई से इट इज अ हीट करंट. Yes, sir. चार्ज अपॉन टाइम तो इलेक्ट्रिक करंट, तो हीट एनर्जी पर टाइम तो वो हो जाएगा हीट करंट. तो ये हीट करंट उसको Q/T भी बोल सकते हैं, dQ/dt भी बोल सकते हैं, वेयर Q इज द एनर्जी. हियर द Q सिंबल इज फॉर एनर्जी. तो कैन आई से इट इज इक्वल्स टू A सिग्मा E T रेज़ टू 4. Yes, sir. यहाँ पे H क्या है भैया? रेट ऑफ द हीट फ्लो Q/T और हीट एनर्जी बाई T. ओके, इट इज अ रेट ऑफ द हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो. तो A को मैंने राइट साइड ले लिया, A को मैं राइट साइड ले गया, तो H इज इक्वल्स टू A सिग्मा E T रेज़ टू 4. इज इट क्लियर? बट ये Yes, sir. ये कब वैलिड है? व्हेन T इज वेरी वेरी ग्रेटर देन TS.
अब अगर बॉडी का टेम्परेचर उसके सराउंड से बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही ज्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर सराउंड से थोड़ा ही ज्यादा है, तो फिर ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा A सिग्मा E T⁴ माइनस T सराउंड 4। इज दैट क्लियर? ये विदाउट प्रूफ आपको याद रखना है। तो क्या ये आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। तो फ्रेंड्स, वापस समझाओगे? हाँ, ओके, चलो ये यहां तक आपको समझ में आ गया सब कुछ? यस। चलो अब ये क्या है, ये W क्या है? तो इट इज द हीट एनर्जी, इट इज द रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू सिग्मा E T⁴। अब ये Q/T जो होता है ना, दैट इज द रेट ऑफ द हीट फ्लो। रेट ऑफ द हीट फ्लो, उसको हीट करंट भी बोल सकते हैं, और ए को मैंने राइट साइड ले लिया, तो ये Q/T इज इक्वल्स टू H बोल दिया, ए राइट साइड आ जाएगा, तो A सिग्मा E T⁴। बट ये जो फॉर्मूला है वो बॉडी का टेम्परेचर उसके सराउंड से बहुत ही ज्यादा है तो, बट अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंड से बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही ज्यादा है, देखो टेम्परेचर ज्यादा होना तो जरूरी है तो ही वो रेडिएशन करना कर पाएगा, अदरवाइज तो वो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देगा। तो बॉडी का टेम्परेचर सराउंड से बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही ज्यादा है, तो फिर फॉर्मूला आपको एक्सेप्ट करना है, याद रख देना है कि फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, एंड दिस विल बी द फॉर्मूला। ओके, ये आप, इज इट ओके फ्रेंड्स? अरे TS सराउंडिंग टेम्परेचर। Obviously it is the temperature of the surround. Is it okay? ओके सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो फ्रेंड्स, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, तो वो आप एक बार रीड करना, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैंसल है, अब एक टॉपिक बचा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एक ही थ्योरी बाकी है, अदरवाइज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये फ्रेंड्स, मैंने आपके चैप्टर नंबर 10 के एग्जाम, एक मुझे संडे एक एग्जाम लेना था, वो रह गया है, तो इस संडे आपका चैप्टर नंबर 10 का फुल का एग्जाम होगा, 3 आवर्स का एग्जाम है ये संडे को। ये संडे मतलब ओनली थियरी होगी ना? नहीं, चैप्टर नंबर 11 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चैप्टर नंबर 10 की बात कर रहा हूँ। ओके ओके। तो दिस संडे यू विल हैविंग एग्जाम्स ऑफ चैप्टर नंबर 10, एंड फ्रेंड्स हम वापस के थर्सडे मिलेंगे, थर्सडे को ये चैप्टर हम खत्म करेंगे, एक थ्योरी बाकी है, न्यूमेरिकल्स के नोट भी मैं आपको दे दूंगा। आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स।